معلومات خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پہ لانا ہے یہ، نیکی کی راہ پہ دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیے جہاں پر چھا گیا ابر کرم ہے، اب آیا رجب ماہ رجب، پھر آ گیا رجب۔ آپ کا نام؟ محمد اشفاق اتاری، وسیم رضا، غلام الیاس اتاری، محمد طلحہ اتاری، محمد بلال اتاری گجرانوالہ، کہاں سے تشریف لائے؟ کشمیر سے، ضلع گجرات سے۔ میں مظفر آباد کشمیر سے، جامعۃ المدینہ سیالکوٹ کینٹ سے حاضر ہوں۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، اور الحمدللہ شریعت کے ہر پہلو پر اس پہ روشنی ڈالی جاتی ہے اور علم دین سکھایا جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کا جو عالمی مدنی مرکز ہے، یہاں پہ الحمدللہ ہر وقت دین کے سیکھنے سکھانے کا جو ہے سلسلہ یہ شروع ہے۔ فرائض کے متعلق، نماز کے فرائض، شرائطیں، اسی طرح دیگر عقائد کے متعلق بھی سب کچھ سکھایا جاتا ہے، اور بالخصوص مدنی مذاکروں کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں ماشاءاللہ امیر اہل سنت کئی جو آج دنیا کے جدید دور کے لحاظ سے مسائل ہیں تو الحمدللہ امیر اہل سنت ہمیں وہ بھی سکھاتے ہیں۔ کہ آج بھی امیر اہل سنت نے فرمایا کہ ہمیں گھر میں کس طرح رہنا چاہیے، کیسے گفتگو کرنی چاہیے، بڑوں سے کیسے گفتگو کرنے چاہیے، چھوٹوں سے کیسے گفتگو کرنے چاہیے، سارے آداب الحمدللہ مدنی مذاکرے میں سکھائے جاتے ہیں۔ خصوصاً کل مدنی مذاکرے میں باپا فرما رہے تھے کہ اخلاقی جو تربیت ہے اس حوالے سے ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں مسلمان نا، تو اس حوالے سے باپا نے بڑی اچھی تربیت فرمائی، تو انشاءاللہ میں نے نیت بھی کی کہ انشاءاللہ ہم اپنے اخلاق کو انشاءاللہ درست کریں گے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو سوالوں کے جواب عطا فرمائے، اس میں یہی فرمایا گیا کہ جو قرآن پاک ہے یہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے، اور عام زندگی کے اندر بھی دیکھیں آپ جب بھی گفتگو کریں تو اس انداز سے کریں، اتنی آواز سے کریں کہ اگلے کو وہ بات سمجھ میں آئے، اور جب تک وہ سمجھ نہ سکے اس وقت تک اس گفتگو کو منقطع نہ کیا جائے۔ امیر اہل سنت نے آج کے مدنی مذاکرے میں اس بات کی طرف ہمیں ترغیب دلائی کہ ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم کسی پر ظلم یا کسی کی دل آزاری یا کسی کا دل دکھا رہے ہیں یا کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کسی کا حق تلفی کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی حق تلفی اور اس پر ظلم کرنے کی وجہ سے ہماری دعا جو ہے وہ قبول نہ ہو رہی، اور بہت ہی پیارا مدنی پھول تھا۔ یہاں پہ آ کے جو برکتیں فیوز و برکات حاصل ہوئے وہ تصور نہیں تھا۔ انشاءاللہ آج کی اس مدنی مذاکرے کے توسط سے سر پہ امامہ سجانے اور داڑھی کی انشاءاللہ نیت کی ہے۔ ادھر آ کے مجھے بہت سکون ملا، ادھر انشاءاللہ تعالیٰ بھی داڑھی رکھ کے جاؤں گا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا، یہاں کی فضا، یہاں کا ماحول، یہاں کے لوگ ماشاءاللہ بڑی محبت والے ہیں، چاہت والے ہیں، اور عزت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ایک دفعہ نا امیر اہل سنت دعا مانگ رہے تھے، دعا میں نا انہوں نے نا ایسے نا بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ کہا کہ اللہ آپ کو مدینے لے جائے، تو یقین جانے دل سے آمین نکلی، اور الحمدللہ میں 10 دن بعد میں مدینے اسی کرامت کو لے کے نا میں پھر آیا ہوں، تو الحمدللہ اب میری حج کی نیت ہے۔ مطلب اب حج کی دعا لینے آیا امیر اہل سنت سے؟ بس وہ دعا لینے آیا۔ امیر اہل سنت جو کہتے ہیں اللہ وہ دعا قبول فرماتا ہے، آپ بے شک بے شک میرا یہ عقیدہ ہے۔ امیر اہل سنت کا محبت جو ہے دلوں میں بڑا چھایا ہوا ہے، جب بھی یاد کرتا ہوں میرے سنت کو بس میری دل جو بڑی آپ کو ملاقات کا دل ہے؟ امیر اہل سنت سے ایک مرتبہ ملاقات ہوئی تھی۔ امیر اہل سنت کا جو حسن ہے اور آپ کا نورانی چہرہ ہے نا، وہ کیمرے کی آنکھ کیپچر نہیں کر سکتی۔ ان کو میں نا نام ایک دیتا ہوں فنافر رسول، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا ہونے والے ہیں۔ ماشاءاللہ ان کا نورانی چہرہ ایسے جیسے نور ٹپک رہا ہے نا ان کے چہرے سے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمارے مرشد کامل کو، امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله،
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। जब कभी दाखिल मस्जिद होने की सआदत पाए, एहतिकाफ की नियत जरूर फरमाएं। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। दिल ही में नियत कर लीजिए कि मैंने सुन्नत एहतिकाफ की नियत की। बेहतर ये कि जबान से भी कह लें, जबान से कहें या ना कहें, बहरहाल दिल की नियत की वजह से आप मुतकिफ तो हो गए। जब तक मस्जिद में रहेंगे आपको एहतिकाफ का सवाब मिलेगा। जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे ये नफल एहतिकाफ खत्म हो जाएगा। याद रहे, मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तार, आब ज़मज़म शरीफ पीना, दम के वाना, नियाज खाना, ये सब उसी सूरत में जायज़ होते हैं कि एहतिकाफ की नियत की हुई थी। अगर नहीं की थी तो अब कर लें, और इफ्तार वगैरह का टाइम है तो भले इफ्तार कर लें। बेहतर और मुनासिब तरीका यह है कि अल्लाह की रज़ा के लिए एहतिकाफ की नियत की जाए, न सवाब के लिए, और कुछ जिक्र और दुरूद कर लिया जाए, चाहे तो 12 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अब भले खाएं पिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। 1444 हिजरी के रजब शरीफ की आज 5वीं शब आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना में मदनी मुज़ाकरा का सिलसिला है। 5वीं शब की मुनासबत से मकतबतुल मदीना के रिसाले ज़ियाए दुरूद सलाम पेज नंबर 2 से फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 5। नमाज के बाद हम्द व सना व दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से फरमाया, दुआ मांग कबूल की जाएगी, सवाल कर दिया जाएगा। मसलन कि नमाज के बाद जिसने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन, तो इसने हम्द व सना कर ली, दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया। तो अब यानी वो हदीस का दूसरा हिस्सा, दुआ मांग कबूल की जाएगी, सवाल कर दिया जाएगा। तो दुआ से पहले अगर ये पढ़ ले ना हम्द व सना जो अभी आपने सुनी, या इस तरह की हम्द व सना, तो नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला खातमिन नबिय्यीन, ये भी हम्द व सना और दुरूद शरीफ भी है। दुआ से पहले दुरूद, ये हम्द व सना होनी चाहिए। दुआ को जल्दी कबूल करने का ये इंशाअल्लाह सबब बनेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरा शुरू हो चुका। अब सवालात कीजिए, और सवाल का जवाब वो भी बेसवाब, यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, पन पढ़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। भूल करते पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएं। मुझे आए बाएँ शाये करता, अपने कहे पर बिला वजह जिद करता नहीं, शुक्रिया के साथ अपना कहा वापस लेता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बांग्लादेश के शहर चिटागोंग के जामिअतुल मदीना हाटहाजारी से अर्ज कर रहा हूँ। मीठे मीठे मुर्शिद की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मस्जिद में जाने की जो 40 नियतें इरशाद फरमाई हैं, तो क्या जिसके घर मस्जिद से बिल्कुल करीब है या मस्जिद के साथ ही है वो भी ये 40 नियतें कर सकते हैं? जैसे कि इमाम मुअज्जिन जो बिल्कुल मस्जिद के कमरे में रहते हैं, क्या वो ये 40 नियतें कर सकते हैं? और ये भी इरशाद फरमा दें कि इल्म नियत कैसे हासिल किया जाए? माशाअल्लाह, 40 नियतों में हसर नहीं है, और ये भी नहीं है कि 40 ही होनी चाहिए, जिसका जैसा मौका। अब वो 40 जो लिखी हुई इनमें बाजों का तो मौका नहीं होता। दूसरे को वुजू का पानी दूंगा, उसमें ये भी नियत है। हमारे यहाँ तो नल लगे हुए हैं, कौन किसको वुजू का पानी देगा? तो इसलिए वो जो मुमकिन अवजार है कि वो जो अपने कमरे से मस्जिद के अंदर आएगा तो उसको इतनी नियतों का मौका नहीं मिलेगा। तो जो मौका मिले जितनी कर सके। और हज़रत ने ये भी फरमाया ना कि जो इल्म नियत रखता है 40 से ज्यादा भी कर सकता है नियत है।
अब इल्म नियत कैसे हासिल हो। अब पहले के दौर में तो बाकायदा ये सिखाया जाता था इल्म नियत, अब वो मदारिस में जो ज़िम्नन कुछ ना कुछ बताया जाता होगा, लेकिन ये कि बाकायदा इसका कोई नियत कोर्स फिलहाल तो कहीं हो ये सुना नहीं है मैंने। तो ये मुताला कर करके ये आदमी मुत्तवल है कि उलमा से पूछ पूछ कर कुछ ना कुछ इल्म नियत हासिल कर सकता है। कुछ छोटी मोटी किताबें भी हैं इस पर, वो हदीस शरीफ है ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात की शरह पर बाज़ उलमा ने छोटी छोटी किताबें लिखी हैं, तो इससे भी फ़वाइद तो हासिल हो सकते हैं। ढूंढेंगे तो शायद मिले आपको। एक तो बहार नियत तो मकतबुल मदीना ने छापी है, ये किसी और अरब दुनिया के आलिम साहब की है, जिसका तर्जमा किया है अल-मदीनतुल इल्मिया ने उर्दू में। बहार नियत, इसमें भी नियतें हैं। सवाब बढ़ाने के नुस्खे, एक रिसाला है मकतबुल मदीना का, उसमें भी नियतों का बयान है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बाहर नीयत किताब माशाअल्लाह हमारे मकतबतुल मदीना ने शाया की है, आपने बड़ी तरगीब भी दिलाई है कुछ दिनों में, कई एक ने पढ़ी भी है। ये अगर हमारे इस्लाम में हासिल करें 120 रुपए की है, 120 रुपए जी, 120। अच्छा हाँ, तो ये किताब तो अच्छी है जी। ये अरबी में किताब असल, इसका तर्जमा मकतब ये अपने अल-मदीनतुल इल्मिया ने किया, मकतबतुल मदीना ने इसको छापा। किताब तो वाकई है, किताब अच्छी किताब है, पढ़ने वाली किताब है। तो अपने अपने हिसाब से उसमें नियत जो कर पाते हैं, जिसका मौका है वो आदमी ले लिया करे उसमें से। एक रिसाला सवाब बढ़ाने के नुस्खे, यानी नीयत कैसे करनी चाहिए, तो माशाल्लाह उसमें भी बड़े अच्छे टॉपिक्स हैं। मोबाइल रखने की नीयत, मोबाइल रिसीव करने की नीयत, तो 74 तकरीबन मुझे याद है मौजूआत हैं उसमें। 21 रुपए का वो तो रिसाला माशाअल्लाह। 72 है शायद जी, अच्छा शायद, वल्लाहु आलम, मैं भूल गया। अमीर रसूल से अर्ज़ है कि अभी मस्जिद के आदाब की बात चली थी, एक इस्लामी भाई ने कुछ इस तरह का देखा, मुझे ऐसे तस्करा हो रहा था, आपको 2 मोज़े इस्तेमाल करते देखा है कि आप मोज़े जो है वो फिनाए मस्जिद में अलग, ऐने मस्जिद में अलग, कुछ इस तरह का उन्होंने एहतियात का आपका एक अंदाज बयान कर रहे थे। तो आज़हन था कि चूँकि ये भी एक है हमारा हिसाब किताब, हम जो मोज़े भी इस्तेमाल करते हैं तो हम इसमें भी बड़े आज़ादाना घूमते हैं, तो इसमें आपका जो ये अंदाज देखा है, तो इसमें आपका क्या जहन है, क्या फरमाते हैं? मेरे 3 मोज़े, एक मोज़े में पहन के आया नमाज में, जैसे ठीक है ना, मस्जिद में। अब दोबारा मस्जिद में आना था, तो वो मोज़े मोटे हैं, वूल के हैं, तो सर्दी में अच्छे रहते हैं, तो वो साफ होने ज़रूरी है। उसको आम फिरता नहीं, उससे एहतियात करता हूँ मतलब। और दूसरे अब मोज़े हैं वो भी धुले में हैं कि ये भी मस्जिद ही है ना, इसमें मस्जिद के अंदर बैठा हुआ, तो इसमें कचरा नहीं गिरना चाहिए। फिर तीसरे मोज़े आम मतलब घर में टहलना करना, वो उसके लिए। यूँ 3 मेरी बहुत पुरानी, आपने शायद देखा होगा, मैं तो अपने पाँव के तलवे झाड़ कर तो मस्जिद में दाखिल होता था, अगर आपको याद हो तो। देखा है मैंने, है ना, चप्पल को अलग वो खारिज मस्जिद जहाँ चप्पल उतारे जाते हैं वहाँ यूं यूं करके झाड़ना, कि वरना तो मस्जिद के अंदर उसकी गर्द गिरेगी ना, गर्द कचरा जो भी चिपका हो, तो ये करना। फिर फिनाए मस्जिद से चलकर अपने फैजान मस्जिद, तो कुछ फासला है ना, तो अब आईने मस्जिद में आने के लिए जहाँ नमाज पढ़ी जाती है, तो अब कुछ ना कुछ मिट्टी वगैरह चिपक जाती है, तो मेरी कोशिश ये होती थी फिर तलवों को मैं साफ करता था, हाथ से साफ करके मस्जिद में। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कि कोई ना मस्जिद में ज़र्रा भी कचरे का अपनी वजह से नहीं आना चाहिए। लेकिन अब ये कि हमारे यहाँ तो बस यही है कि एक ही मोज़े पहन कर साईं भाई घूमते फिरते नजर आते हैं,
जुलूस में भी उसी से, अब जुलूस में ठीक है फर्श साफ होता है, लेकिन अब मिट्टी का रास्ता किसने रोका है? मिट्टी कचरा मेल कुचेल तो लगता ही है ना, तो फिर उसी से वो ज़रा मस्जिद में आना होता है। तो होना ये चाहिए कि एक शापर हो, जैसे अगर जो जुलूस से याद है गरीब नवाज में शिरकत सादत है, तो उसमें अलग मौजे हों, उन मौजों को उतार कर शापर में रख ले बंदा, मौजे जेब में भी रह जाते हैं। अगर जेबें हो ना साइडों पे, तो हमारे यहाँ कुर्तों में तो होती हैं जेबें, तो उसमें शापर में, मैं भी शापर में ही ला रहा हूँ, तो वो रख लिया जेब में, अब साफ सुथरे धुले हुए अंदर आने के लिए पहन लिए मोजे, दैट्स ऑल, कोई नो प्रॉब्लम। इस तरह नमाज में वही साफ सुथरे पहने, और फिर अब जुलूस की तरफ निकले तो इसको बदल कर, मगर मस्जिद में नहीं तब्दील करने। मस्जिद में फिर आप तब्दील करेंगे ना तो उससे धूल गिरेगी, वो जो मुस्तअमल ज्यादा है, जमीन इधर उधर चूमते रहते हैं, तो यूं मतलब एहतियात, मस्जिद में मोजे पहनने में भी एहतियात होनी चाहिए। अगर वो इस्तेमाल शुदा है तो गर्द तो गिरेगी, उसका इम्कान है, तो एहतियात। फिर यूं झाड़ते रहना चाहिए जब उतारें तो या पहनने लगे तो, मगर ये भी झाड़ना मस्जिद में नहीं है, बाहर। बादब बानसीब, जितना हम अदब करेंगे अल्लाह के घर का, इंशाअल्लाह इतना ही हमें नफा हासिल होगा दुनिया आखिरत का। इतना रश है अभी फैज़ान मदीना में, तो यहाँ पर भी जब आते तो इतने सारे रश में ज़ाहिर कोई अगर एहतियात करते हुए ज़्यादातर नज़र नहीं आते, तो फिर जो करने वाला वो भी अपना हौसला हार देता है कि भाई अब क्या करें, मजबूरी है तो यूं है। तो इस बारे में आप क्या ज़हन बनाते हैं? जो अमल जितना दुश्वार होगा उतना क़यामत के दिन नेकियों के पल्ले में वज़नदार होगा। अफ़दलुल आमाल अहमज़ुहा, इस हदीस से पाक है कि अफजल तरीन अमल वो है कि जिसमें ज़हमत ज़्यादा हो। तो यूं अगर कोई तकलीफ ज़्यादा उठाएगा, अल्लाह करेगा सवाब भी ज़्यादा पाएगा। जैसे कि सर्दियों में ठंडा पानी है, वज़ू में सुस्ती होती है ज़ाहिर है, तो अब वज़ू करेंगे तो डबल सवाब है। गर्म पानी है, तबीयत मतलब सेट है उससे, तो अब वो डबल सवाब का मौका ना रहा कि वज़ू दुश्वार ना रहा। तो ठंडे पानी से वज़ू, या नज़ला लगा हुआ है, सर दुख रहा है, बुखार चढ़ा हुआ है, वज़ू को जी नहीं करता और किसी ने वज़ू किया, डबल सवाब मिलेगा। ये तो हदीस में सराहत है इसकी। तो जिसको ये भी है ना, कुरान करीम पढ़ने में तकलीफ होती है तो तुला है ना, उसको भी सवाब ज़्यादा मिलेगा। तो जिसमें अमल में तकलीफ ज़्यादा हो उसको सवाब ज़्यादा मिलेगा। अब कोई बिल्कुल जैसा कि फुर्सत है, कोई काम नहीं है और जुमेरात है, इज्तिमा है, चलो यार आज तो इज्तिमा में टाइम पास हो जाए यार, चलते हैं। एक तो ये इज्तिमा का शरीक, दूसरा ये कि टाइम नहीं है, मसरूफियत है, गाहक लगे हुए हैं, कारोबार का टाइम है, और यार इज्तिमा का टाइम हो गया, दुकान कर दी बंद और आकर बैठ गया मस्जिद में। इसके और उसके अमल में कितना फ़र्क है। तो सवाब का तरत्तुब भी इसी तरह होगा। अब छुट्टियों के दिन मदनी काफिले हमारे यहाँ ज़्यादा सफ़र करते हैं, हम लोग तरगीब दिलाते हैं छुट्टियों से फ़ायदा उठाओ, और ये भी अच्छा है। ताहम यह कि जो छुट्टी करके जबकि किसी की हक तलफी ना होती हो, आइन शरीयत के मुताबिक वो 3 दिन अपने कुर्बानी देकर वो निकले और फिर राह खुदा में सफ़र करे मदनी काफिले में दावत इस्लामी वालों के साथ, इसके सवाब में और छुट्टी के दिन फुर्सत के टाइम जो मदनी काफिले में सफ़र करे, दोनों में फ़र्क तो है ना यार, अंडरस्टूड है। तो इसलिए मतलब कुर्बानियाँ देनी होंगी, कुर्बानियाँ और तकलीफ़ें उठाए बगैर काम कैसे होगा? टाइम मिलेगा, फुर्सत मिलेगी, मूड होगा, तब हम नेकी करेंगे। ये कैसे हो सकता है? मूड भी बनाना पड़ेगा, टाइम भी निकालना पड़ेगा और मशक्क़त भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी और नेकी करनी होगी। तो इस नेकी का फिर अजरी कुछ हो जो और होगा। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر نماز میں دھیان کسی اور طرف جا رہا ہو، کوشش کے باوجود بھی نماز میں باقی نہ رہ پا رہا ہو، تو اس صورت میں کیا نماز ہو جائے گی؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں، اور نماز میں توجہ ایک طرف کیسے رہ پائے اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرما دیں، میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ وَإِيَّاكُمْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ وَلَهُمْ بِغَيْرِ حساب۔ یہ پاک نہ رہ پاتا اس کا کہنا نماز میں کوشش کے باوجود توجہ نہیں رہ پاتی، یہ آخر میں کہنا اس سے نہیں پہلے بھی پہلے والا یہی کہا کہ توجہ نہیں رہ پاتی، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اچھا اگر نماز میں توجہ ہٹ جاتی ہے، غفلت تو عام طور پر سبھی کو ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ جنرل بات کر رہا ہوں، تو اس میں یہ کہ اگر ارکان وغیرہ سب پورے کیے، کوئی نماز میں فاسد ہونے والی صورت نہیں ہوئی، نہ کوئی مکروہ تحریمی والی صورت ہوئی، لیکن توجہ ہٹی رہی، خشوع و خضوع نہ رہا، تو یہ مطلب ہونا تو چاہیے خشوع و خضوع، لیکن یہ کہ یہ مستحب تھا جو اس کا ترک ہوا، تو اگر کوئی فساد یا کوئی جو میں نے کہا مکروہ تحریمی وغیرہ کوئی ایسا فعل نہیں پایا گیا، توجہ ہٹی رہی، تو نماز ہو جائے گی، لیکن خشوع و خضوع کی کوشش کی جائے۔ یہ ہمارے ہاں مستحب ہے، غالباً واجب بھی ہے، صوفیاء کرام کے نزدیک بہت تاکید ہے کہ نماز کی روح خشوع و خضوع، خشوع و خضوع وہی کہ دل لگا رہے۔ سورۃ المؤمنون میں اللہ پاک نے ایمان والوں کے چند اوصاف یعنی خوبیاں ذکر فرمائی، چنانچہ ان کا پہلا وصف، پہلی خوبی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ نماز میں ظاہری و باطنی خشوع، نماز میں خشوع ظاہری بھی ہوتا ہے اور باطنی بھی۔ ظاہری خشوع یہ ہے کہ نماز کے آداب کی مکمل رعایت کی جائے، مثلا نظر جائے، نماز سے باہر نہ جائے، سجدہ کرنے کی جگہ پر نظر رکھنا مستحب ہے، تو وہاں نظر رہے، قیام کی حالت میں سجدہ کرنے کی جگہ پر نظر رکھنا یہ مستحب ہے، اور آنکھ کے کنارے سے بھی کسی کو نہ دیکھے، کنکھیوں سے دیکھنا آپ نے سنا ہوگا، تو یہ بھی نہ دیکھیں، اس طرح بھی نہ دیکھے، آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے، کوئی عبث و بیکار کام نہ کرے، عبث کے معنی بھی بیکار ہوتا ہے، کوئی بیکار کام نہ کرے، کوئی کپڑا شانوں پر اس طرح نہ لٹکائے، کندھوں پر، شولڈر پر اس طرح نہ لٹکائے کہ اس کے دونوں کنارے لٹکتے ہوں اور آپس میں ملے ہوئے نہ ہوں، انگلیاں نہ چٹ کھائے، اور اس قسم کی حرکتوں سے باز رہے۔ یہ چند مثالیں دی اور بہت ساری، اس میں بعض تو مکروہ تحریمی ہے، یعنی ناجائز و گناہ۔ باطینی خشوع، اندرونی دل کا خشوع یہ ہے کہ اللہ پاک کی عظمت پیش نظر ہو، دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو، اور نماز میں دل لگا ہوا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا سوال امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ ہے کہ ماں اپنے بیٹے سے اپنی بہو کا غیبت کر سکتی ہے کہ مجھے تنگ کرتی ہے مجھے، اور ایک سوال یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی کوئی بات ایسی اس میں کوئی خامی ہو وہ دوسرے سے کر سکتی ہے کہ وہ مجھے تنگ کرتا ہے اس طرح، یا اس طرح کی باتیں اب کر سکتی ہے اپنے شوہر کے بارے میں کوئی بات؟ مطلب کوئی اگر ضرورت ہے کہ مثلا ماں
को बीवी तंग करती है, वाकई तंग करती है, और माँ बेबस है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाती। अब इस नीयत से अपने बेटे को कहते कि इसको थोड़ा समझा दो साफ नेक नियति से, तो जायज है, मगर इसका चांस बहुत कम होता है। तो आम लोगों की गीबतों की भी जैसे मैंने कहा कि एक तो फुर्सत और इज्तिमा में आए, एक या कि टाइम निकाल कर इज्तिमा में आए, दोनों के सवाब में फर्क तो पड़ेगा। तो इसी तरह यहाँ ये खराबी आम गीबतों से ज्यादा खराबी है कि माँ बेटे को अपनी बीवी की बुराई बयान करे। इसलिए कि माँ जब बेटे को बुराई बयान करेगी ना इसकी बीवी की, तो बेटा जो ना जिसकी जो ये शरीक हयात है, रफीका हयात, इसके साथ साथ जिंदगी गुजारनी है, इसके बारे में ये बदजन होगा, बदगुमान होगा, इसकी मोहब्बत कम होगी। जब मोहब्बत कम होगी तो दीगर हुकूक अदा करने में भी कोताहियाँ शुरू हो जाएंगी और इनमें फासले बढ़ेंगे और आपस में लड़ाई झगड़े होंगे। और मतलब ये कि ये डिग्रेड होगी इसकी नज़र में कि ये मेरी माँ को तंग करती है। ये देखिए कि एक तो आम आदमी की ग़ीबत, उसमें ये सूरतें हर जगह नहीं होती, लेकिन यहाँ ये सूरत भी है। और तो ये ग़ीबत ज़्यादा खौफनाक, ख़तरनाक, घर तोड़वाने वाली, फासले बढ़ाने वाली, रिश्ते तोड़वाने वाली है ये ग़ीबत। और ये आम है, ये बहुत आम है। यानी जिसको ये कहा जाता है कि सास जो है ना ये अपने बेटे को अपनी बहू के खिलाफ चढ़ाती है, आम उर्फ में इसको ये कहते हैं। और ये अब उसकी नीयत कि चढ़ा रही है या खाली ग़ीबत बराए ग़ीबत कर रही है, हर सूरत में खतरनाक है। तो इसलिए मतलब कुफ्ल मदीना लगा रहे काश, कि यूं मतलब घर तबाह होते हैं, बर्बाद होते हैं। सास को बहू के बारे में नहीं बोलना है। इसी तरह बहू जो है ये कि बीवी अपने बेटे को उसकी माँ के बारे में, यानी अपनी सास के बारे में इस तरह की बातें ना करे कि बेटा अपनी माँ से बदगुमान होगा। एक तो ग़ीबत तो हो रही है, जब ऐसा बेटा पावरफुल हो, समझदार हो कि माँ को समझा देगा और वाकई माँ जुल्म कर रही है, गलतियां कर रही, इसलिए बताया तो गुंजाइश मौजूद, समझे कि ये समझाएगा इसको, इसी नीयत से, नेक नियति से, और जितनी जरूरत है उतना ही बताया तो जायज। लेकिन क्या इस तरह की नीयत होती है आमतौर पे? तो अगर अब बहू बोलती है तेरी माँ ऐसी, तेरी माँ ने यूं किया, तो ये भी वो ग़ीबत है कि ग़ीबत होने के साथ साथ माँ बेटे में लड़ाई ठन्ना, बदगुमानियों का बाजार गर्म होना और एक दूसरे के खिलाफ मतलब यह कि बदसन्नी, कि माँ के खिलाफ बेटा हो जाएगा, इस तरह बदजन हो जाएगा, बदगुमान हो जाएगा, जो कि बहुत खतरनाक माँ बेटे की जुदाई का सबब ये बन सकता है। तो ये घरेलू ग़ीबतें जो है ना, जिससे आमतौर पे घर तबाह हो रहे हैं, ये कोई मतलब ढकी छुपी बात नहीं है। जिसको देखो मतलब घर में कौन है, तो कोई खुशनसीब होगा शायद, अगर हजारों कहूँ, पता नहीं लाखों कहूँ, कि यानी कि ऐसा घर होगा कि जिसमें सास बहू जो है ना माँ बेटी की तरह रहते हों। ये हजारों लाखों में कोई घर होगा, बाकी कोई तो कोई तनाव रहता है। इस तरह नंद भावज में तनाव रहेगा, यानी कि जो शौहर की बहन है वो नंद कहलाती है, तो भावज वही कि अब इसके भाई की बीवी इसकी भावज है, भावज भी बोलते हैं, भाभी भी बोलते हैं। तो ये नंद भावज में आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत ही कम, बस एक दूसरे को अजनबियत फील करेंगे, अजनबी रहेंगे, एक दूसरे से बातें छुपाएंगे। माँ अपनी बेटी से काना फूसी करेगी, और भले बहू के खिलाफ नहीं बोल रही, बहू को तो यूं ही लगेगा ना कि ये मेरे खिलाफ कान भर रही है, मेरे खिलाफ कुछ प्लानिंग हो रही है। या माँ अगर बेटे से बात करेगी, भले बात वो मदीने की कर रही है, लेकिन वो अगर दूर से देखेगी ना कि माँ ये कुछ सरगोशी में बातचीत कर रही है आपस में आहिस्ता आहिस्ता, ताकि मैं ना सुन सकूं, हो ना हो ये माँ जो है ना ये मेरे खिलाफ चढ़ा रही है, सास जो है। ये क्योंकि बीच में शैतान है ना, यूं बदगुमानियां भी होती हैं। मुसल्ले पर बैठी है बहू, नमाज पढ़ रही है, फिर तस्बीह पढ़ रही है,
फिर इत्तेफाक से वो सास की तरफ देखकर पढ़ पढ़ के दम करती है मेरे ऊपर। वो जादूगरनी है, यानी ये मुआशरा ऐसा है कि इसमें ये सब समझो कि है ऐसा। मैंने तो कुछ भी नहीं बताया, वो बहुत कुछ है। खामा का शैतान जो है ना वसवसे डालकर घर तोड़वा देता है। हालांकि बेचारी वाकई नेक दिली के साथ वो नमाज पढ़ रही है, तस्बीह पढ़ रही है, खुश होना चाहिए कि मेरी बहू नेक है। लेकिन एक बहू जादूगरनी बन जाती है अगर मुसल्ले पर बैठी रहती है तो। जाए कहाँ? मदीने। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। इस पूरे मामले में जो आपने भी वजाहत फरमाई है, एक किरदार और भी है घर के अंदर, जिसका नाम है सुसर, और उसका अभी तक जिक्र से खास हुआ नहीं है, क्योंकि उसको भी हुआ ही नहीं है, अब शुरू हुआ है। उसको कहीं से फीडबैक मिलता है, यानी जैसे कि माँ बेटे को कहती है तो अमूमन बेटा भी बातों का ऐसा होता है कि वो बीवी की तरफ इसके अंदर उससे मुतासिर होता है कि वो माँ का भी वो एंटी होने की चांसेस बढ़ जाते हैं कि फिर वो माँ को ही पसंद नहीं करता। लेकिन माँ उसके साथ साथ अपने शोहर को, तो सुसर जो होता है वो अपनी बहू के बारे में एक ख्याल या एक तस्वुर बांध लेता है, एक जहन बना लेता है, और उसकी इंफॉर्मेशन का जरिया सिर्फ इसकी अपनी बच्चों की अम्मी होती है, यानी कि उस बहू की सास। तो ऐसे मौके पर जो सुसर साहब हैं, इनको अपनी सोच किस तरह रखनी चाहिए, और अगर उनसे आकर ये बात करती है अपनी बहू के बारे में, तो उस वक्त इसको अपना क्या किरदार अदा, अच्छा ऐसा करती है। और फिर कभी बेटा अगर आकर बात करेगा ना अपने अब्बू से कि अब्बू अभी अम्मी को समझाओ ना, तो अब्बू अम्मी को समझाने के बजाय बेटे को समझो, बेटा आपकी अम्मी ने मुझे बताया था आपकी अम्मी सही कह रही है, तो बेटा बाप से भी जाता है कि ये तो दोनों वन साइड हो गए यार। तो ये एक कैरेक्टर है घर के अंदर जिसका नाम सुसर है, और ये बड़ा मतलब पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन उमूमन ये एक साइलेंट जोन में रहते हैं। तो ऐसे में इन हालात में क्या इनको भी कोई अपना किरदार अदा करना चाहिए कि घर में गुनाहों की अगर आग लगी है तो उसको बुझाने में ये अपना कोई किरदार अदा कर सकता है? आमतौर पर सुसर जो होता है ना इन मामलात में थोड़ा मतलब है क्या बोलते हैं, दबी हुई पोजीशन होती है, क्योंकि जो सास है ना वो उमूमन घर का एसएचओ होती है, समझे। जो पावरफुल होती है ना औरत, वो शोहर पर हावी होती है, एसएचओ होती है। तो शोहर ज्यादा पंचायत में पड़ता नहीं कि अभी ये सारे मुझ पर समझे राशन पानी लेके चढ़ दौड़ेंगे, तो खाली वो तमाशा ही रहता है। अब ये सारा क्यों है? ये इल्म दीन से बिल्कुल सही है, उलमा से दूरी। उलमा तो एक आंख बातें ही नहीं है ना। मौलाना को क्या समझ पड़े यार, मौलाना अब नहीं समझ पड़ती, तो मरने के बाद पता चलेगा कि किसको कितनी समझ पड़ती थी। तो यूं उलमा से राबते नहीं, दीनी माहौल में जाना नहीं। क्या हम मुल्ला बनेंगे क्या? इज्तिमा में जाएंगे हम, मदनी काफिले में ना आवाए ना यार। बच्चों के लिए रोजी कमाना भी तो इबादत है, ये भी सिखा दिया गया है लोगों को। या आमतौर पे बोलते हैं, आप सबको नहीं, लेकिन बहुत सौ को, मुझे तो है तजुर्बा, बहुत सौ होगा। आप किसी को दावत दोगे ना, यार बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाना भी तो इबादत है ना, हम तो वो इबादत कर रहे हैं। बेचारे मतलब ये सब जान छुड़ा लेते हैं। इस सैरो तफरी के लिए जाते हो तो ये कौन सी इबादत करते हो? तब नहीं आते बच्चों की रोजी रोटी याद। तो यूं मतलब जान छुड़ा लेते हैं, दीन की तरफ आते नहीं है। तो जब वो दीन की तरफ आते नहीं है अमली तौर पर, तो इस तरह ये कि वो दीन की जो मालूमात है, दीनी मालूम, उससे होते आमतौर पे कोरे। तो ये फिर अपनी मर्जी से चल रहे होते हैं और घर चला रहे होते हैं। तो यूं मतलब घर में खराबियां मौजूद हैं, और ठीक ठाक खराबियां हैं घरों में, ठीक ठाक। खाली नाम मुसलमान है, मुसलमानों वाला है, बाकी देख लो लिबास, देख लो खाने पीने का अंदाज, देख लो इनके रस्मो रवाज, देख लो इनके यहाँ शादियाँ, इनके यहाँ खतना, इनके यहाँ सालगिरह की तकरीबात, जो भी होता है सब मतलब ऐसा लगता है जैसे एंटी इस्लाम हो रहा है। अगर ये कुछ बातें इस्लामी होती हैं, निकाह इस्लामी होता है, मस्जिद में होता है, समझे,
इक्का दुक्का बातें होती हैं, लेकिन एक जनरल मतलब बात कर रहा हूँ, गुनाहों भरी हरकतें या फजूल हरकतें इतनी होती हैं कि वो सब दीनी मामलात में हावी होती हैं इनके। बहुत कम ऐसा होता है कि जो वाकई इखलास के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ किया जाए उसमें, इसका बहुत फुकदान, बहुत कमी है। तो यूं मतलब घर तबाह हुए पड़े, रहमत के नुज़ूल के लिए कोई जगह बाकी नहीं रखी। बहुत पहले मैं किसी के घर गया तो उसने बोला कि मियाँ बीवी में हमारे मतलब तरकीब बस बनती नहीं है, लड़ाई हो जाती है। वो खैर मैंने वो मॉडर्न था, मैंने कहा यार तुम लोग जब शादियां करते हो तो अल्लाह पाक की रहमत के नुज़ूल के सारे असबाब ख़त्म कर देते हो, सारे दरवाजे बंद कर देते हो। अब बोलते हो लड़ाई होती है, तो खाली लड़ाई होती है, सर नहीं फटते यार। लड़ाई तो ज़बान से तकरार होती है। तो हमारी मतलब ने वो इकाई जो है ना वो गलत होती है आमतौर पे, तो आगे चल के वो निज़ाम जो है ना वो सही हो नहीं पा रहा। जो सुसर है वो इंसाफ से काम ले, और अगर सास गलत कर रही है तो सुसर अपनी ज़ौजा हुई ना इसकी, तो उसको समझाए, खौफ खुदा दिलाए। मगर कब इसको इल्म होगा, समझाएगा, कोई हदीस सुनाएगा, इसको खौफ खुदा दिलाए कि ऐसा नहीं करो, ये जुल्म है, हम मर जाएंगे, बाद में फंस जाएंगे। और फिर ये हमारी कदर नहीं रहेगी, ये जवान दिल हैं, ये बसन हो जाए, हमसे टूट जाएंगे। बहुत बुढ़ापा बहुत करीब है, बुढ़ापे के बाद ये हमको घास नहीं डालेंगे जब इनके सहारे की हमको सख्त जरूरत होगी। ऐसा हो भी रहा है। बूढ़ा ये जो मतलब ओल्ड हाउस है ना, शायद इसी वजह से हो सकता है कि इनकी दाग बेल डाली गई हो कि जवान औलाद पूछती नहीं है। वरना आप देखो कोई आलिम दीन ऐसा नहीं मिलेगा जो मतलब अपने माँ बाप को ना पूछता हो। बल्कि दावत इस्लामी का कोई मंझावा मुबल्लिग, यूँ तो आम आदमी तो बोलते इमाम वाला, दाढ़ी वाला, ये सब मतलब नहीं होते सही।